Hello, everyone. I hope you guys are completely fine, my dear CSS aspirants and future officers. Today's our session is about orientation. It means that it's going to be the first session from this platform, formal session about CSS, PMS, CSS empathy, CSS compulsory subjects, and the basics of CSS. So this lecture is going to cover all these areas, all these topics. So that is why we have named it orientation session. Moreover, we'll also be talking to each other at the end of the session. I'll be taking your questions and let's make it interesting. So far, I'm receiving a lot of messages of the members who are going to join us in a while. Anyhow, I have already started the recordings. So if anyone misses or comes late, we'll get the recordings of today's lecture. Orientation session. What should be the medium of your class? Urdu, only English? What do you prefer? Kindly let me know in the chat box so that I carry on with that. If you love English, I'll be speaking complete English. And if you love Urdu, right? So I know Urdu, Pashto, and what is another one? Okay, Hasib says, go with English, sir. Maham says both. So there will be some other members who will be feeling hesitation in English. Some will be feeling much better in speaking or listening to English. Anyhow, we'll be having a multilingual class. By multilingual class, I mean that we are going to have this session in other languages as well, like it will be in Urdu, it will be in English. Sometimes I don't know Punjabi, but if I speak a few sentences or words, I would love to speak Punjabi or Pashto, right? So let's begin. As you can see on the screen that it is orientation session. Today is September 1st, 2024. Time is 10 p.m. It is from the Platform Success Squad, and today's lecture is going to be taught by Shehzad Khan, I mean me. So there might be some questions in your mind. Is CSS difficult or is it easy or challenging, right? The next question that you might come across is that, can I crack, pass in a CSS or not, right? Sometimes we are ambivalent. Ambivalent means we are confused in two options. We are less confident while knowing our all potentials and skills. And then we ask such questions. Can I pass? Can I ace CSS? Can I crack it? Do I have the potential to do CSS now? Some might be thinking that I'm a student. I have recently graduated. Some might be thinking that I'm an average student. Some might be thinking my background of academic background is just, I belong to arts. Some might be thinking I'm a doctor, engineer. So doctors and engineers uh, can't do CSS, whatever comes in their mind, and they might be thinking that I have not studied Pakistan affairs and current affairs and Islamic studies and GSA, English. I don't have command and all these things. So do I have the potential to do CSS now? Am I eligible for CSS? What do you get after CSS? This is the question that might come to your mind, that what do you get after CSS? You become an officer, you get a grade, right? You get excellent
our lucrative, handsome salary, some cars, some bungalows, or other things, right? There might be some things in your mind, whether I'll be posted in Balochistan or Islamabad, or KPK, or in tribal areas, or I'll be posted in big cities. There might be some questions in your mind, right? We are human beings and we are inquisitive creatures. Inquisitive. We learn a lot of things from our mind. Inquisitive mean you are all the time thinking, right? How much time does it require for the preparation? What subjects do I need to prepare? What will be my optional subjects? Optionals combo. What subjects should I choose? What books do I need to study? Recommended books. What teachers I need to go to? What YouTube channels I need to watch? What news channels, what newspapers I need to read and watch? How to prepare notes? And the last and most important question that might come to your mind, is English necessary for it? So all these are some of the basic questions in each and every CSS aspirant, particularly the ones those who are beginners, right? So in today's orientation session, in today's class, we are going to answer all these questions. The first question is CSS difficult, easy, or challenging, right? So to answer the question, it is very easy. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्या CSS डिफिकल्ट है? तो मैं इसको डिफिकल्ट नहीं समझता, मैं इसको समझता हूं कि दैट इज चैलेंजिंग। क्या है ये? चैलेंजिंग है। ये डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन ये भी गलती होगी कि मैं इसको आसान कहूं। आसान भी नहीं है, इट इज क्वाइट चैलेंजिंग। ये आपको टफ टाइम देता है, ठीक है? तो डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल मैं इसको नहीं कहता, ठीक है? इसी तरह कैन आई क्रैक पास NICSS? जनाब, अगर आपकी एज 30 से कम है और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है और गवर्नमेंट सर्वेंट की एज 32 से कम है और आपके पास मास्टर्स की डिग्री है या 14 इयर्स की डिग्री है BA की, तो आप CSS कर सकते हैं। आप एलिजिबल है एज के लिहाज से भी और अपनी तालीम के लिहाज से भी। तो ये बात अपनी जहन से निकाल दे कि आप ये सोचते हैं कि कैन आई क्रैक इट, गो एंड क्रैक इट, ठीक है? सोचे मत, सवाल भी मत करे, गो एंड क्रैक इट, ठीक है? डू आई हैव द पोटेंशियल टू डू CSS नाउ? पोटेंशियल तो है, 2 हाथ है, 2 आंखें है, ठीक है, 2 पैर है, आप और लोगों की तरह है। तो जब आप और लोगों की तरह है, सो व्हाई नॉट? Why can't you do it? Give me a minute, I'm coming, please. So the next question is, am I eligible for it? Yes, you are eligible if you are under 30 and if you have a degree for it. अगर आपके पास डिग्री है, लीगली आप एलिजिबल हैं, लीगली आपका एज 30 से कम है, तो आप जाएं CSS कर लें, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है? आप अपने आप को भी मत रोके, डराओ धमकाओ मत खुद को कि ये जो है एवरेज लोगों का, गरीबों का, बच्चों का खेल नहीं। डराओ धमकाओ मत खुद को धमकियां मत दो, खुद को मोटिवेट करो दैट आई कैन डू इट, आई एम एलिजिबल फॉर इट, आई कैन डू इट, एटलीस्ट आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट इट, ठीक है? हाउ मच टाइम डज इट रिक्वायर फॉर प्रिपरेशन? इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Some people prepare it in 6 months, some people prepare for it in 1 year, some people prepare for it in 2 years. ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से काम लेते हैं और कितना प्रोफेशनल गाइडेंस में आपने खुद को रखा हुआ है। आप इधर उधर ऐसे ही ओपन ग्रुप्स में फिर रहे हैं और लोगों से किताबों की भीख मांग रहे हैं, लोगों से नोट्स की भीख मांग रहे हैं, गाइडेंस की भीख मांग रहे हैं, तो ऐसा मत करें।
ठीक है, आपको हमने प्लेटफॉर्म दे दिया है, सक्सेस स्क्वाड का आपको यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो अब इधर उधर आपने घूमना बंद करना है। जो भी क्वेश्चन करना है आपने सीएसएस सक्सेस स्क्वाड की जो टीम है यहाँ से करना है। व्हाट सब्जेक्ट डू आई नीड टू प्रिपेयर, तो ये सब्जेक्ट्स पूछने के लिए आप इधर उधर मत जाएं। एफपीएससी की वेबसाइट खोले, वहां से अपना सिलेबस डाउनलोड करें। सिलेबस भी है, टॉपिक्स भी हैं, और हर टॉपिक के नीचे आपको बुक एफपीएससी वालों ने बता दिया है कि यूएस हिस्ट्री के लिए ये किताबें हैं, इस्लामिक स्टडीज के लिए ये किताबें हैं, जीएसए के लिए ये किताबें हैं, आप लोगों की करंट अफेयर्स के लिए ये टॉपिक्स हैं, आप लोगों की इंग्लिश प्रेसी का ये सिलेबस है, उसकी किताबें ये हैं, उसकी गाइडेंस ये है, उसका क्राइटेरिया ये है। अगर आप सीएसएस सिलेबस को समझ गए तो मतलब आपने पूरा सीएसएस ही कर लिया। इसमें क्या है, इधर उधर भागते रहते हो, कभी किसी से पूछते हो, कभी किसी से पूछते हो। ठीक है, सो स्टॉप इट एंड डाउनलोड द सीएसएस सिलेबस, रीड इट 100 टाइम्स। आपने इसको 100 दफा पढ़ना है। ठीक है, और जो जो सब्जेक्ट्स आपने अपने लिए पसंद किए हैं या अपने डिग्री में पढ़े हुए हैं, आपने बैचलर्स में पढ़े हुए हैं, मास्टर्स में पढ़े हुए हैं, वही सब्जेक्ट्स अगर आपने उठाने हैं तो उसके सिलेबस को देख लो कि यही चीजें आपने पढ़ी है मास्टर्स में, या इसका स्कोप है या नहीं है। इस पर मैं अलहदा आप लोगों के साथ एक क्लास भी लूंगा। ठीक है, तो आज चूंकि ओरिएंटेशन सेशन है, आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करनी है। आई नीड टू लिमिट माई सेल्फ एंड रिस्ट्रिक्ट टू आवर ओन ओरिएंटेशन सेशन। ठीक है, व्हाट बुक्स डू आई नीड, ये तो सिलेबस के मुताबिक आपने लेने हैं। ठीक है, मैं भी सजेस्ट करूंगा जब हम यहाँ तक पहुंचे। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, नोट्स के लिए अलग लेक्चर भी दूंगा, लेकिन आज ये है कि सबसे पहले आपने रीडिंग शुरू करनी है। अगर आपका बहुत 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 ही ज्यादा बिगिनिंग है, बिल्कुल आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो रीडिंग शुरू करें और रोजाना एटलीस्ट एक पैराग्राफ लिखना जो है इंग्लिश में शुरू करें। और बेहतरीन तरीका ये है कि हमने आपको सक्सेस कार्ड का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है। कम देयर एंड राइट योर इंग्लिश सेंटेंसेस इन द कमेंट सेक्शन। वहां पर आपको हमने एक जबरदस्त तरीका दिया है। मैंने कल भी पैराग्राफ दिया था, परसों भी दिया था, एक एजुकेशन के इंपॉर्टेंस पर। एक जो है मैंने पैराग्राफ शेयर की और साथ साथ में 5 क्वेश्चन दिए थे और आप लोगों को कहा था कि 5 क्वेश्चन के आंसर लिखे, इन्हीं पैराग्राफ से लिखे। हर एक चीज के लिए मैं जो है सिस्टमेटिकली आपको ले जा रहा हूँ, खासतौर पर वो जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप राइटिंग शुरू करें। सब कुछ छोड़ दें, राइटिंग एंड इवैल्यूएशन, राइटिंग एंड इवैल्यूएशन एंड प्रैक्टिस। इज इंग्लिश नेसेसरी फॉर इट? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल 100%, बल्कि 100 से भी जो है 200 जो है परसेंट जो है इंग्लिश लाजमी है। जरूरी है कि आपका पूरा का पूरा कमांड जो है इंग्लिश पर हो, वोकैबुलरी पर, ग्रामर पर, लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजीज पर, लिटरेचर पर, फिगर्स ऑफ स्पीच पर, इसी तरह जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, पैराग्राफ राइटिंग पर, इसी तरह एसे राइटिंग पर, प्रेसी राइटिंग पर, वोकैबुलरी पर, इडियम्स पर। मतलब ये है कि आपकी इंग्लिश 100% करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आपकी इंग्लिश 100% करेक्ट नहीं है, तो अभी आप लोगों के पास जो जी 5-6 महीने हैं, सबसे ज्यादा काम अपनी लैंग्वेज पर करें। जब तक आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव नहीं करते, यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट टू द एग्जामिनर इन रिटन एग्जाम। तो आप अपने आइडियाज जो है एग्जामिनर को सही तौर पर नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ कोटेशंस आप लोगों के लिए रखे हुए हैं फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन, और इससे जबरदस्त मोटिवेशन मिलती है। सो बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इंसान के जहन में क्वेश्चन आते हैं, कैन आई क्रैक और पास सीएसएस, तो आप बिलीव करें। यू बिलीव, यू मस्ट बिलीव यूर सेल्व्स, अपनी जात को पहचाने। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि नो दाई सेल्फ, अपनी जात को पहचानो। एंड यू आर हाफ वे देयर, तो मतलब आप
आपने आधी कामयाबी हासिल कर ली है। अब बिलीव कब आएगा? बिलीव तब आएगा जब आप थोड़ा बहुत काम रोजाना जो है करोगे, और 1 महीने बाद जब देखोगे तो आप में इम्प्रूवमेंट आया होगा, 2 महीने बाद देखोगे तो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आया होगा, 6 महीने बाद देखोगे तो आप में परफेक्शन आई होगी, आप एक्सीलेंट लर्नर बने होंगे। ठीक है? इसी तरह अगर आपकी शुरुआत वीक है तो जिग जैगलर आपको कहता है यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। शुरुआत में जो है सब ने स्क्रैचेस से शुरू करनी है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता शुरू में। परफेक्ट बनता है प्रैक्टिस के साथ, रिपीटिशन के साथ, स्टडी के साथ, राइटिंग के साथ, स्पीकिंग के साथ, लिसनिंग के साथ, क्लासेस के साथ, नोट्स के साथ। इन सारी चीजों से जब आप निकलोगे देन यू विल बी परफेक्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। आपने ग्रेट बनने के लिए शुरुआत करनी है, आपने अपने जात को बेहतर ऑफिसर बनाने के लिए ये शुरुआत लाजमी करनी है। एन एक्सीलेंस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ कंटिन्यूअस जर्नी दैट नेवर एंड्स। अगर आप एक्सीलेंट बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ये डेस्टिनेशन नहीं है कि बस आप परफेक्ट बने, नहीं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपने मरते दम तक जो है खुद को एक्सीलेंट साबित करते रहना है, और ये कोशिश जो है आपने जारी रखनी है इन ऑल रिस्पेक्ट, हर लिहाज से। अच्छा, थोड़ा सा आगे जाते हैं। आपकी ज़हन में एक और क्वेश्चन आएगा कि ये प्रोसेस थोड़ा सा हमें समझा दे कि कितने स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए मैं ऑफिसर बन सकता हूँ, सीएसएस ऑफिसर। तो सीएसएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी जो पहली पौड़ी है, इसको हम कहते हैं स्टेप। ठीक है? सो सीढ़ी जिसको हम कहते हैं, द फर्स्ट स्टेप दैट इज प्रिलिमिनरी टेस्ट, एमपीटी। ठीक है? ये आपका इब्तिदाई टेस्ट होगा। ठीक है? अभी नवंबर में हो रहा है, अक्टूबर में हो रहा है, इससे पहले अक्टूबर 6 था, अब नवंबर में चला गया है। तो इसको आपने पास करना है 33% मार्क्स के साथ। ठीक है? फिर जब आप ये पास करोगे, फरवरी के एंड में या कभी कभी शुरू में आपसे रिटन एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है? और ये फिर एक मुश्किल तरीन एग्जाम या राइटिंग जो होती है वो रिटन एग्जाम की इसकी होती है, क्योंकि आपने दिन में 2 पेपर देने होते हैं, 6 घंटे लिखाई करनी होती है, और जैसे आप घर जाएं बिना सोए आपने अगेन 2 पेपर तैयार करने होंगे, और सुबह उठकर अगेन 6 घंटे की जो है आपने राइटिंग करनी होती है। ठीक है? और 6 दिन जो है आपने बिल्कुल स्टेमिना जो है बनाए रखना है, और ये तब मुमकिन है जब आप इसके लिए प्रैक्टिस करें पहले से। तो इसलिए कहते हैं कि प्रियर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, कि जब आप पुअर परफॉर्मेंस से बचना चाहते हैं तो जरूरी यह है कि आप प्रियर प्रिपरेशन करें, आप खुद को पहले से तैयार करें। आपकी उंगलियां चलनी चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए, चाहे आप ना सोए, चाहे आप कुछ ना खाए पिए, लेकिन 6 दिन तक आपने इस रिटन एग्जाम में सरवाइव करना है। फिर जब आपने इसको पास कर लिया, एक मरहला आएगा मेडिकल एग्जामिनेशन का। ठीक है? दैट्स इजी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये भी इजी होता है। फिर आपका जो इंटरव्यू या वाइवा वूचे जो है ये आएगा, और फिर इसके बाद जो है जो रिजल्ट आएगा, आप ऑफिसर बन जाएंगे। अब ऑफिसर बनने के बाद आपकी एलोकेशन किधर होगी? इसके 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं जहां पर आपकी एलोकेशन होगी। सबसे पहला पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं। ठीक है? जिसको डीएमजी ग्रुप भी पहले कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, और ये एसी और डीसी इसी ग्रुप से होते हैं। ठीक है? फिर हमारे पास दूसरा जिधर लोग ज्यादा पसंद करते हैं जाना, ठीक है, तो ये लोगों की पसंद के हिसाब से मैंने रखा हुआ है, बाकी हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। ठीक है? पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, जो पावर के ज्यादा शौकीन हो तो वो पहले 2 ग्रुप्स जो मैंने, पास, पीएएस। ठीक है? पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ना जाना चाहते हैं, और कुछ पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं। ठीक है? कुछ लोग
ग्लोबल माइंड वाले लोग होते हैं और वो कहते हैं कि बस हमने दुनिया घूमनी है, दुनिया में घूमना है, हमने अपने 60 साल जिंदगी में 60-65 ममालिक देखने हैं, ठीक है, और वहां पर पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज पेश करना है, तो वो फिर फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने कॉमर्स को प्रमोट करना है, बिजनेस माइंडेड हूँ, मैंने इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छे से बनाने हैं, मैंने पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर करनी है, मैंने ट्रेड लोगों के साथ करना है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स करने हैं, तो फिर वो कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप में जाना चाहते हैं और उधर चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, हमने कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज टैक्सेशन की तरफ जाना है, बॉर्डर कंट्रोल करने हैं, हमने स्मगलिंग को कंट्रोल करना है और मैंने उधर ड्यूटी देनी है और मैंने यहाँ से पाकिस्तान की खिदमत करनी है, तो फिर वो पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज में जाते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, मैंने लोगों से टैक्स लेना है और टैक्स का जो निज़ाम है इसको बेहतर बनाना है, ठीक है, और फिर ऐसे लोग जो हैं, ये एफबीआर और इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज जो है, आईआरएस, यहाँ पर चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफिस को पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि बस मेरा एक ऑफिस हो और वहां पर मेरे सामने फाइल्स पड़े हो और मैं उसमें जो है साइन करता रहूं और पॉलिसीज बनाता रहूं और मैं बड़े बड़े मिनिस्टर्स और वजीर आजम और जितने भी वजीर आला साहिबान हैं, मैं उनकी खिदमत भी करता रहूं और उनको जो है गाइड भी करता रहूं एज अ ब्यूरोक्रेट। तो वो फिर ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें इन लोगों के पास उठना बैठना पसंद है, ठीक है, तो ये फिर ऑफिस वाले बन जाते हैं और ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स करते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन ग्रुप में हमें जाना है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ग्रुप या इंफॉर्मेशन सर्विसेज या आईजी जो है, ये ऐसा ग्रुप है जिसका ताल्लुक मीडिया कम्युनिकेशन से है, जर्नलिज्म से है, डिजिटल मीडिया से है, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने से है और पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज क्रिएट करना है लोगों के सामने। कुछ ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जितने भी कैंट एरियाज हैं, फौजी जो कैंट एरियाज होते हैं, वहाँ की जो मैनेजिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है, सर्विसेज हैं, वहाँ पर मैं दे दूं, तो वो फिर मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप में जाना पसंद करते हैं और वो कहते हैं कि हमने कैंट में रहना है, वहाँ पर ड्यूटी भी करनी है और इनके काम संभालने हैं। और कुछ कहते हैं कि नहीं, मैंने ऑडिट और अकाउंट की तरफ जाना है, मैंने लोगों के फाइनेंशियल की ऑडिट्स करनी है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है कि हुकूमतें किस तरह स्पेंड करती हैं और किस तरह कमाती है और इसका ऑडिट किस तरह होगा, और मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज बरोकार लाकर पाकिस्तान की खिदमत करनी है, तो वो PAAS के पास जाते हैं, पाकिस्तान ऑडिटेड अकाउंट सर्विसेज। और कुछ ऐसे हैं कि वो पसंद करते हैं कि मैंने, चाहे वो ओवरसीज पोस्टल सर्विसेज हो या हमारे मुल्क के अंदर जितने भी डाकखाने वगैरह हैं, वहां पर जो पोस्टेज स्टैम्प्स इशुएंस होती है या पोस्टल सेविंग स्कीम्स होती हैं, मैंने यहाँ पर खिदमत करनी है, तो वो इस ग्रुप में जाना पसंद करते हैं। और कुछ कहते हैं कि नहीं, मैंने ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करना है, रेलवे के निज़ाम को ठीक करना है, ठीक है, वो इधर फिर जाना पसंद करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि वेयर टू स्टार्ट माई प्रिपरेशन फ्रॉम, कि अपनी प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करूँ। सो स्टार्ट फ्रॉम योर सिलेबस एंड रिकमेंडेड बुक्स। सिलेबस आज मैं आप लोगों के साथ आपके ग्रुप्स में शेयर करूंगा और सिलेबस को पढ़ाने के लिए मैं कल जो है आप लोगों के साथ एक और सेशन भी रखूंगा। के सिलेबस में हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो है क्या क्या है और वहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या क्या है और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के वक्त हमें क्या क्या जो है जहन में कौन कौन सी बातें रखनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए मेरी तरफ से यही है और आखिर में आप लोगों के साथ एक जबरदस्त बात शेयर करना चाहूंगा, फिर आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा। बात यह है कि यूर डिटर्मिनेशन इज द कंपस, यूर हार्ड वर्क द मैप, एंड यूर passion the fuel. Navigate the challenges
chart your course and reach the pinnacle of success. You are the architect of your destiny. Build it with every effort every day. तो आप ही अपनी जिंदगी के जो है जामिन हो, रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से शेप करने वाले भी आप खुद हो। सो इसलिए कहते हैं कि बिल्ड इट विथ एवरी एफर्ट। अपने आप को तराशो, हर 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 हाल में, हर कोशिश में, हर मेहनत में। अगर आपने किसी के साथ सिंसियर रहना है तो अपनी ज़ात के साथ सिंसियर रहो। अगर आपने किसी के साथ मोहब्बत करनी है तो अपनी ज़ात के साथ मोहब्बत करो। और अगर आपने किसी पर मेहनत करनी है तो अपनी ज़ात पर मेहनत करो। ज़ात से ज़ात को कंप्लीट करो, फिर बाहर देखो। जब तक खुद को आपने बनाया नहीं है, बाकी दुनिया को छोड़ दो, कम से कम इस जर्नी में। सो फ्रॉम माय साइड आज के लिए इतना ही है। रिकॉर्डिंग में स्टॉप करता हूँ और आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूँ। थैंक यू।